I'm going to take that opportunity. I'm three generations of my family have served in the army or are serving in the army. So I consider myself an insider. However, by conviction, I'm a pacifist, and so I take very well the points that you've made. What we have to realize that most of the narratives that have been set in Pakistan, as well as those that have been set in India, have been set by people who are invested in the status quo. They belong to a certain section of society, and a large part of our society is actually very, very poor. Many of the narratives wouldn't perhaps be needed in Pakistan if they had taken care of their poor people. I think you would agree with me that it's fair to say that it's the same with us. If to recount a small statistic from the 1990s when I was a student, 3 million people were already internally displaced in India due to development projects. There was a very large number of people who were absolutely destitute due to various kinds of misgovernance. And this deals with a larger perspective, not military, but it's a larger political of misgovernance. And it's a larger perspective of how the trajectory of development has taken place in this country. So as a military man, what would you like to say about, it's not just, two militaries facing off against each other, but actually two neighbors whose destinies are somehow irreversibly entwined, and they don't know what to do. And so their elites sometimes, they set up, for their constituencies, perhaps an enemy of their own convenience. I think you've stated something which is very deep, very interesting also. I could not elaborate on so many things because the time is very short. 58, when Ayub Khan came into the horizon, some things happened. Right from word go, as part of CENTO, Pakistan was always looking at militarization. Always looking at militarization. And with 58, with Ayub Khan assuming the role of the boss of Pakistan, I think the militarization started in a big way. Now, don't look at militarization of Pakistan so simply. We are aware of it. We are aware of the headworks in Pakistan. We are aware of the canal systems which were made. And we are aware of how many generals purchased how many acres of land along each canal. This corruption of the military system which has started in Pakistan and the Punjabi Musliman. Unfortunately, the Punjabi community of Pakistan, which dominates the entire armed forces of Pakistan, started somewhere very early at that time. Those who had been driven out from India, they were treated as Muhajirs and whatnot have you in a very different way. But what I'm trying to get to you is, today's Pakistan's problem, internal problem, is related to the very thing which he's saying. That means there is an identity crisis of Punjab versus the others. But fortunately for Punjab, it is the army which is controlling. Army is totally corrupt. You will like to know, and you can ask any Pakistani, how many of them have settled down in Turkey, UK, USA. All their money, all their power everything is outside Pakistan. They had to move the armed public towards radical thought. Otherwise, they couldn't have survived. There was a problem. If we look into the details of history, probably these things will start emerging. I get a feeling that yes, if we have to, hope that Pakistan will change one day, the options are two. Either there is dismemberment of Pakistan in the way it is, or there is a system put in place by which the generalship is out of the political hierarchy of Pakistan. But this will not suit the USA, it will not suit China, with CPEC and other interests which are there behind the scenes. I don't think we will see it. So therefore India has to stand alone.
India has to develop its own response strategies, and we cannot be dependent on somebody to provide us the wherewithal or help or a nod that we should do it or not do it. This is where I think the whole thing is. If you go into details, it's on the internet, if you read the books on Pakistan, and particularly the book on Ziaul Haq, as to how he transformed Pakistan and what has he made of Pakistan today, it is there. So I think basically the question is right. If we are all looking at some hope, there are a lot of peace-loving people in our own country who look at that peace should come between the two neighbors. But I don't think it is possible in the recent because of the geopolitical interplay of China and US in this region. It will not happen in the near future. That's all that I have to say. Dixit sir? Yeah. Sir, do you have a comment? You want to say something? The General just said about the corruption Pakistani army indulges in, and the generals of Pakistani army, how they have accumulated property and money abroad. So in this connection, I want to narrate something which I learned personally, and it was there in the press or some WhatsApp message some time back, maybe 5, 6 years back, 10 years back. One BBC correspondent had come to India. In India, he met Major General Afsar Karim. Major General Afsar Karim was a special forces officer, and he was a para-commando. He had retired. So the BBC correspondent asked the general, Pakistani generals have villas and mansions worth millions and millions of dollars, not only in Australia, Canada, USA, Dubai, Turkey, all over the world. And all their family members are have dual citizenship, and they can go leave Pakistan and go there anytime. They have tons of money in form of dollars in various countries. So General Afsar Karim said, what you are saying must be correct, but we are Indian Army, we don't indulge in corruption. Including comment, Major Ahmed. Yeah. हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया गया कि अल्टीमेट एम ऑफ वॉर इज पीस, और उसी शांति के लिए हम सब ने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की कि हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि आगे शांति आएगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं, जो मैंने पढ़ा, कि आतंकवाद जो है वो समर्थ का हथियार है, और समर्थ से मतलब वो विश्व की महाशक्तियां जो हथियारों के जो ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, वो कहीं उन्होंने आतंकवाद को जन्म दिया और उसमें पाकिस्तान ने उसके साथ आए, और साथ आने के कारण हमारी स्थिति ये बनी कि हमें हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ाना पड़ा, और बाय द टाइम ये दिखाना भी ज़रूरी था कि जब हमारे नागरिकों पर हमला होता है तो हमने उसे देश पर हमला माना और उसको एस्केलेट भी किया। लेकिन फिर भी जब भी कोई जंग होती है तो जंग के साथ उस देश का आत्मसम्मान, वहाँ के लोगों की जान, और जंग जब भी होती है तो वो केवल युद्ध के मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती है। हमारे सर लोग यहाँ बैठे हैं, वो डिप्लोमेसी के लेवल पर भी लड़ी जाती है, वो राजनीति के लेवल पर भी लड़ी जाती है, वो टेक्नोलॉजी के लेवल पर भी लड़ी जाती है, और साथ ही साथ जो और हमारी सेनाएं लड़ती हैं वो तो होता ही है। इस वाले जैसे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हमने बहुत कुछ गेन किया, लेकिन बहुत सारे सवाल भी आए कि ऐसे कितने देश हैं जो हमारे साथ आए। इसमें चूंकि हम डोमिनेटिंग पावर थे, तो हमने जो सीज फायर हुआ, क्या उस समय हम कुछ चीज़ें इम्पोज नहीं कर सकते थे अगर हम डोमिनेंट पावर थे? तो इसके साथ ही साथ अगली बात जो आती है कि संप्रभु राष्ट्र, सॉवरेन स्टेट के लिए जरूरी होता है कि वो इंटरनल किसी भी प्रेशर से और एक्सटर्नल प्रेशर से फ्री रहता है। लेकिन इस बार शायद पहली बार ऐसा हुआ कि सीज फायर के पहले एक दूसरा देश
हमारे बारे में घोषणा करता है कि सीज फायर, हम लोगों की बात हो चुकी है, सीज फायर होगा, और फिर सीज फायर हुआ भी। और अब चूंकि जब बहुत सारी CNN, अल जजीरा, ये अंतर्राष्ट्रीय जो खबरें देखें भारतीय मीडिया से इतर, तो बहुत सारे सवाल वहाँ उठ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब जंग होगी तो ऐसे सवाल आएंगे, वो चाहे डिप्लोमेसी के लेवल पर हों, राजनीति के लेवल पर हों, तकनीक के लेवल पर हों, तो वो सब भी सोचा जाना चाहिए और उसका भी जवाब मुझे लगता है कि जिम्मेदारों की तरफ से दिया जाएगा। बहुत जगह हम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन चूंकि हमें ये सोचना होगा कि वॉर इज़ अ सीरियस इशू, बहुत ज़्यादा सीरियस इशूज है, और आर्मी के पास वो जेंटलमैनशिप है जो जंग करने के पहले सोचती है, समझती है, और हमारी क्षमताएं इतनी थी कि हम पाकिस्तान को कभी भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे और आगे देंगे। तो मुझे बस इतना ही कहना था। जय हिंद। अपनी बात इस पे ख़त्म करेंगे कि इस सब में हमारा रोल एज सिटीजन्स, एज इंटेलेक्चुअल्स क्या होता है, जिसको हम अपने आप को थिंकर्स कहें या पॉप फिलोसोफर्स कहें या जैसे भी कहें या इंटेलेक्चुअल्स कहें। 2 पॉइंट का मेन रोल होता है हम जैसों का, कम से कम कि समय से पहले थोड़ा सा इशारा करना और जब सब कुछ बीत जाए, और दोनों में हम बहुत सटीक नहीं होते, लेकिन एक इशारा। तो क्या हमने वो रोल किया? हमने व्यक्तिगत रोल पे किया। दिल्ली में कुछ थिंक टैंक्स हैं, उसमें मेरे कुछ जानने वाले और बाकी आर्मी से रिटायरमेंट लेके बैठे हैं, जैसे कर्नल अजय शुक्ला वगैरह थे। तो ये वॉर होने से बहुत पहले ही, जब चाइना का जो अपना इसलिए कोविड का काल रखा था, उसके पहले ही हम लोगों ने उनको जो कहा था कि प्रीएम्प्टिव एक्शन लीजिए, कि पहले इसलिए रहने को बोला था कि हमें पता था कि दुनिया उसमें कूद पड़ेगी, और इवेंचुअली हम इसमें सही साबित हुए जब पाकिस्तान के साथ हुआ। इसीलिए हमने ये अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। हमें मालूम था कि ये वॉर लंबी नहीं खिंच सकती, देयर आर टू मेनी ग्लोबल फोर्सेस इन्वॉल्व्ड। अब चलिए, जो वो हो गया सो हो गया, इसमें इंडिया को तबाह करना नहीं था, अपने कट टू साइज या कंटेनिंग या जो भी वर्ड करना है वो करा। अब जो बात आगे की करते हैं वो भी शायद हमारी मानी नहीं जाएगी, बट एज ए ले पर्सन वी आर नॉट मिलिट्री एक्सपर्ट्स। अब जो स्थिति बन रही है बांग्लादेश में, और रोज़ हमा बोलना, और जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जा रहा है, अगर हमारे हाथ में चॉइस होती, मेरे पर्टिकुलर या हमारे लोगों के हाथ में, तो एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक अभी करते हम चाइना पे, अरुणाचल में, इसी वक्त। ये कुड बी रॉन्ग, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बढ़ती जानी है। आपने देखा है कि उन्होंने बांग्लादेश में एक एयरपोर्ट बनाने का ठेका देने जा रहे हैं ऑलमोस्ट हमारे चिकन नेक पे, और धमकी भी दे रहे हैं कि हमारा जो है वो सी रूट नहीं है नॉर्थ ईस्ट से। तो अब चिकन नेक सुनते सुनते हम लोग अधेड़ हो गए। अब उसको चिकन लेग करना पड़ेगा कम से कम, या तो उसको समझाया जाए तरीके से, डिप्लोमेसी से पहले, कि भैया इस एरिया में, इस पट्टी में। वो अलग बात है कि आर्मी कहती है कि हम उनको रौंद देंगे, वाई वेट फॉर दैट। वो तमाशा तो होगा कि इस एरिया में अगर पोर्ट भी बनेगा या वो बनेगा तो हम बनाएंगे, या बेल्ट एंड रोड टाइप चीज़ हमारे नॉर्थ ईस्ट से सी तक लाने के लिए त्रिपुरा के साइड से, वो इंतज़ाम हमें अभी से करना पड़ेगा। पर मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा ऑन चाइना। पर सेकंड बेस्ट चीज़ फिर से वो करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश को समझा दिया जाए। आइडियल होता, दुनिया आपको तभी मानती है, शेर तभी मानती है जब अपने से बड़े पे हमला करते हैं और पहले हमला करते हैं। आखिरी बात ये कह के करूँगा, कई लोग ये कह रहे हैं कि 2030 तक हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पैरिटी आ जाएगी। हमारा ये मानना है कि हमारे लाइफ टाइम में अब इस तरह की चीज़ कि हम उसको क्वांटम जंप ले सकें, स्टेटस को बना रहेगा। अगर पैरिटी आ भी जाएगी तो आप पिछला इतिहास देख लीजिए, 99 से कारगिल में छोटा से ही बहुत बड़ा नहीं हुआ था, 26 साल तो बीत गए ना, तो अब 22 साल बाकी हैं 2047 में। तो हमारा जो स्टेटस दुनिया बताना चाह रही थी दैट यू आर समवेयर इन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, वो स्टेटस बना रहेगा। तो 2030 तक वेट करना अपना सिग्नल देने के लिए बहुत ठीक हमारे हिसाब से नहीं होगा। गवर्नमेंट नोज़ बेटर, आर्मी नोज़ बेटर। तो ये दोनों बातें शुरू में हमने कह दिया था, वो आगे जाके सच साबित हुई। वॉर आगे नहीं बढ़ी, पूरे चैनल्स ने कह दिया कि वॉर हो गई वगैरह वगैरह, वो तो जनरल साहब ने बताया। और इस वक्त क्या करना है अभी, पर ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ उतना ही नहीं जो पाकिस्तान था, एक मुसीबत हमारी साइड में खड़ी कर दी गई, दैट इज़ हैपनिंग।
तो मुझे लगता है कि इन 2-3 चीज़ों को आगे बोल के, आगे मौका लगा या आगे इसमें से कुछ डेवलपमेंट निकल के आया फ्रॉम बांग्लादेश साइड, तो हम फिर से इस पैनल को रिक्वेस्ट करेंगे कि उस बारे में बातचीत करें। इट्स बीन अ वंडरफुल इवनिंग, और किसी को कोई सवाल पूछना हो तो। ठीक है, मैं एज ए कॉमन मैन, आम आदमी के हिसाब से पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं ना आर्मी से हूँ ना पॉलिटिकल उससे हूँ, लेकिन मेरे मन में जो विचार और आम आदमी के मन में जो विचार है, और जो पहले युद्ध हुआ था पाकिस्तान इंदिरा गांधी के समय में, हमने बांग्लादेश बनाया था, उस समय भी एक धारणा बनी थी और कुछ लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे कि हमारी आर्मी बहुत कुछ कर सकती थी, हमने इतने हजारों सैनिकों को छोड़ दिया पाकिस्तान के, और पॉलिटिकल दबाव में हम आ गए। आज भी वही नैरेटिव दूसरे पक्ष से लिया जा रहा है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, गलत समय पे हमने सीज फायर कर दिया, हमारी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। क्या मैं अभी जो आपने बताया, हमारा क्या उस समय डिसीजन सही था या आज डिसीजन सही है, या दोनों समय डिसीजन गलत था? इस पे मैं आपकी ओपिनियन चाहूँगा। वेरी नाइस। देखिए, आजकल मीडिया पे बहुत कुछ निकल रहा है, सभी लोग इन सब्जेक्ट्स पे बात कर रहे हैं, आपने व्यूज़ भी सुने होंगे, लेकिन मैं 40 इयर्स का एक्सपीरियंस एक फौजी की तरह आपसे बात करता हूँ। फौज जब प्लान बनाती है तो सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि एम क्या है। फौज का कोई भी काम बिना एम के नहीं होता, एम सबसे पहले दिया जाता है। अब मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ आपको। 71 में या उससे भी पहले चले जाएं, अब आप इसकी विडंबना देखिए जरा, इसको समझने की कोशिश करिए। 13 सितंबर 1962 प्रधानमंत्री पालम एयरपोर्ट पे खड़े रिपोर्टर से बात कर रहे हैं, नेहरू जी की बात कर रहा हूं। वहां बात शुरू हुई थागला रिज के ऊपर कि ये भाई थागला रिज चीनी आके बैठ गए हैं, आप क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये जवाब दिया मीडिया को कि मैंने अपने जनरल्स को बोल दिया है कि थागला रिज वापस ले लो। इसका अहमियत समझे स्टेटमेंट का। इसका अहमियत ये हुई कि इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, लेकिन यहां तो कोई तैयार ही नहीं था। 13 सितंबर ही हैड डिक्लेयर्ड वॉर ऑन चाइना। नाउ आई कम टू 71। ये तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि यू हैड अ पर्सन लाइक सैम मानेकशॉ who knew military affairs very well. अब उस समय क्या हुआ, जब ये शरणार्थी हमारे देश में घुसे और चीज़ें थोड़ी बिगड़ना शुरू हुई, तो प्रधानमंत्री ने अपना ग्रुप बुलाया, सैम मानेकशॉ गए, और हुक्म क्या मिलता है कि जनरल साहब कुछ करिए। तो उन्होंने पूछा कि मैडम क्या करना है, व्हाट इज द एम। देयर वाज नो एम, बट देन ही सेड कि ओके वील प्रिपेयर द प्लान बट आई नीड टाइम, बिकॉज सेना तैयार नहीं है, अब तैयार करने के लिए टाइम चाहिए। और स्ट्रैटेजिक वो कि कितने दिन में लड़ाई समाप्त करनी है सब पता था उनको। एनीवे, किस्मत हमारी अच्छी थी कि समय दिया गया। अब मैं इस बात पे आता हूं, फौज का काम है जब हम कोई भी जंग में जाते हैं, लड़ते हैं, तो उसके 5-6 डी से शुरू होने वाले शब्द हैं। फर्स्ट इज डिटेक्ट, सेकंड इज डेटर, थर्ड इज डाइवर्ट, फोर्थ इज डिग्रेड,
5th is destroy, 6th is defeat. ये एक अपने आप में एक करके फेजेस हैं. ये नहीं है सही कि एक ही से हम दूसरे में जंप कर जाएं, ऐसा हो सकता है, लेकिन बेसिकली कन्वेंशनल लड़ाई इस लाइन में चलती है. अब क्या होता है कि हर स्टेज पर एक एम होता है और एक एग्जिट स्ट्रेटजी होती है, और ये एग्जिट स्ट्रेटजी देना बनाना हम लोगों का काम. हम ऑप्शंस देते हैं गवर्नमेंट को. ये नहीं बोलते कि भाई ये आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, कब लड़ाई रोकनी है आप बताएंगे. लेकिन उस दौरान में एक बार एम मिल गया फिर वो नहीं रोकता. इस बार एम जो मिला वो बड़ा क्लियर कट था. ये सवाल हम क्यों इसको बार बार कंफ्यूज करते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा. एम वॉज वेरी क्लियर. यू हैव टू हिट द टेरर टारगेट्स एंड नॉट गो अप द एस्केलेशन लैडर. एम जो था वो किया गया ना. अब क्या हुआ कि जब भाई वो लोग भी तो प्रोफेशनल आर्मी है, ऑन दी अदर साइड देयर इज अ प्रोफेशनल आर्मी, कुछ रिस्पॉन्स उनका होगा, वो ऐसे ही थोड़ी बैठे होंगे. दे आर ऑल्सो एंटिसिपेटिंग कि इंडिया कुछ करेगा. अब उन्होंने कुछ किया, कुछ एक्शंस हुए हवा में ज़मीन पर, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स का लेवल बढ़ाना पड़ा. तो रिस्पॉन्स का लेवल बढ़ा. तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हर चीज़ की हम क्यों नहीं ये हुआ, क्यों नहीं हुआ, बाद में हम बात कर सकते हैं, लेकिन एक एम है जो कि लेट डाउन है. फौज उसके लायक काम करती है. हाँ, एम इतना ही क्यों बनाया, इससे बड़ा एम क्यों नहीं बनाया, वो सवाल हो सकता है. बहुत लोग वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि बिना कुछ ज़मीन लिए, बिना कुछ किए आप वापस आ गए, आपने कुछ भी नहीं किया. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें चाहिए क्या था. What did we want? Let us say if I were to ask you as an independent person without any disregard, अगर आपको क्या एम चाहिए, what aim would you want armed forces to deliver? अगर आप कुछ कहना चाहते हो उसको, क्या एम चाहिए आपको? Anyone can say, कोई भी आप सजेस्ट कर लीजिए. Then let us challenge what has been done. Will anybody like to define a name? What do you want with Pakistan? You want dismembering Pakistan? You want a full war with Pakistan? Now let me give you one example of the cost involvement. Do you know सियाचिन की लड़ाई में एक दिन का आप कितना अपनी जेब से पैसा देते हैं? एक दिन के लिए. Any guess? मतलब जब हम वो काम कर रहे थे वहां पे जब थे तब 7 करोड़ रुपए पर डे लगता है. डू यू नो कि हाउ विल यू गो इनटू वॉर? आपका आत्मनिर्भर कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई. आप सारा का सारा काफी कुछ असला विदेश से लेते हैं, उनके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं है. कभी वो इंजन नहीं देता, कभी फ्यूज नहीं देता, कभी कुछ नहीं देता, आप तो कहीं भी फंस जाएंगे. आई थिंक हमारी स्ट्रैटेजी मूव होना शुरू हो गई है. दैट इज व्हाई आई ड्रू दिस लाइन 2016. मेरी समझ में, हो सकता है इससे पहले 1-2 साल पहले स्टार्ट हो गई हो, लेकिन मेरी समझ में अब ये स्ट्रैटेजी मूव हो रही है. ग्रेजुअली इन टाइम्स टू कम इट विल नॉट बी द सेम. अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है, ऑप सिंदूर तो चल ही रहा है. मैंने आपको पहले भी बताया, पहले कोवर्ट था, फिर ओवर्ट हुआ, अब डायरेक्ट स्ट्राइक. कोई एलसी नहीं, कोई आईबी नहीं, घुस करके अंदर डीप इनसाइड पाकिस्तानी टेरिटरी हमला हुआ. बट सिर्फ यही हुआ है कि नॉन कॉन्टैक्ट हुआ. आप और हम बात कर रहे हैं कॉन्टैक्ट की लड़ाई. अगर कॉन्टैक्ट की लड़ाई में जाना है, द कॉस्ट इज कोलोसल, एंड देन वी आर एक्चुअली डूइंग व्हाट लॉट ऑफ बिगर एनिमीज ऑफ इंडिया वांट अस टू हैपन, टू फिनिश इंडिया. मतलब यू विल ब्लीड इकोनॉमिकली सो बैडली कि मतलब बुरे हाल हो जाएंगे देश के. विल बी बैक टू वेयर वी स्टार्ट.